In the classroom, I want to be placed at an important place, at the place of my choice. I want to know my place, where I am. When we are thinking about ourselves, where we are, I see myself in this classroom. This classroom is in the school premises. This school is in Batingu. Batingu is in Islamabad. Islamabad is in Kashmir. Kashmir is in India, and India is in Asia, and Asia is in globe. And where is globe? It is in solar system. Where is solar system? It is in Milky Way. Where is Milky Way? It is in galaxy. Where is galaxy? It is in some super galaxy. Where is super galaxy? It is in universe. So I want to find my address, my place, where I am. For that purpose, I want to understand where I am. That is the universe. And so I look around me. Yes, this girl is placed just in the left of this girl. So I am seeing towards my left, towards my right, towards my front, towards my back, towards my down, towards my up. I want to see where I am. I want to see the environment, in which environment I am. So I was talking that we are on Earth. The Earth is in solar system, first of all. And the solar system is in Milky Way. Do you know how much away is from here to this moon? Earth is surrounded or revolved around by a small, tiny what? Satellite. Natural satellite is moon, and the solar system is comprised of, I don't know how many planets are there which are revolving around the sun. 8. Yes, can you name one by one? So first is Mercury, second is Venus, third is First is Mercury, okay. Venus, Earth, then Earth, Mars, Jupiter, Saturn, okay, Saturn, Uranus, Uranus, Neptune. yes, Neptune, and then some Pluto. Okay. Are these planets equidistant from each other? No. Then first three planets are a bit nearer to Sun. So they are called inner planets. Then there are some middle planets, and then there are some outer planets. The inner planets are a bit closer, while the outer planets are middle are a bit far, and then the outer are farthest. Do you know which planet the man has ascended to or sent his missions? Where we have landed? It is Mars. Mars. Not Mercury. It is Mars. Do you know indeed the name of Indian mission which was sent to Mars? So Mangalyaan. It was MOM. Mars orbital mission. Mission on Mars. Okay, if you call to each other, how much time it takes me, if I would call a friend in Srinagar, how much time it would take him to listen to my hello? Instantly, not instantly, it would take a fraction of second. A fraction of second. Because speed of the wave which takes my sound from here to Srinagar is very fast. So it takes very less time. If I'm talking to America, how much time it takes? Not so long. Not so long. A fraction of second. And sometimes perhaps you have seen there are some stereos which get the sounds of their reporters.
it takes a bit more time to them. He says hello, the other wants to talk, and later on the sound interrupts with his sound. There is delay in what the sound. The man who is on the ground, he reports something, he says hello, and he has talked about a sentence, then the hello reaches to whom? To the studio. Have you seen it? Yes, yes. आप कभी कभी टेलीविजन स्टूडियो में देखते हैं कि कोई रिपोर्टर बात कर रहा है, लेकिन ये डिले होता है साउंड का आना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं पूछते, इसको कुछ टाइम लगता है. कैन यू टेल मी व्हाई? ओके, नाउ आई वांट let you consider how much fast we are communicating. When the mom was sent from Earth to Mars, I don't know how much time it took, you will find it for yourself, but I will give you some idea that when it sent some communication to Earth, it was received after 20 minutes. Yes, the phone which says hello from Mars, this hello takes 20 minutes to reach the Earth. I'm just giving you an idea how long or how away it is. Mars कितना दूर है, इसका आइडिया मैं ये देता हूँ कि जब उनसे कम्युनिकेशन सिग्नल भेजेगी, उस सिग्नल को हमारे पास पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट. 20 मिनट लगेगा. यहाँ से अमेरिका तक हमारे सिग्नल को पहुँचने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है राउंड द अर्थ, लेकिन मार्स से हमारे तक पहुँचने में 20 मिनट लगेगा. Just I'm giving you some idea how much away the Mars is from our Earth, and Mars is approximately nearer planet to us. It's not away. It is within the inner planets where distance is very low. And when you take this distance from Jupiter to Saturn, it is approximately 1 lakh times more than it. More than it. Now, my idea was to talk to you about where we are. We are on Earth in the solar system. There is a great astronomer who gave the example, if you make a scale, मुझे यहाँ scale बनानी है, मैं बनाता हूँ सन जल्दी जल्दी, अगर मैं scale बनाऊँगा तो कैसे scale बनाऊँगा? If I could take moon as a fly, moon को मैं कितनी बड़ी होगा? ये तो पॉसिबल है बोर्ड पर देखना, इससे बड़ा तो नहीं. Then I am to draw Earth as big as a cricket ball, tennis ball. Then I am to draw Sun 1 foot diameter. 1 foot diameter. And the whole solar system will take me approximately 1 kilometer diameter, a stadium-like structure. तो मुझे 1 किलोमीटर क्या चाहिए? बोर्ड, जिसमें मैं एक जगह पर सेंटर में रखूंगा 1 फुट का सन, और फिर साइज वाइज में रखूंगा सभी प्लैनेट्स. Just consider 1 kilometer stadium, which has 1 kilometer diameter. How big is our stadium? Is it 1 kilometer diameter? No. No. It's not even half kilometer. So when you take 1 kilometer diameter stadium and you would place some 8 balls in it. Biggest ball is what? Sun. Sun, which is approximately as big as a football. वो फुटबॉल जैसा है. Our Earth is just as a Costco ball. Are you getting me? Yes. आप अंदाजा कीजिए, आप ये स्टेडियम जो है हवा में लटक रहा है और उसमें यही 9 बॉल्स हैं.
1 किलोमीटर डायमीटर स्फीयर में हमारे पास 9 छोटी छोटी बॉल्स है, जिनमें सबसे बड़ी फुटबॉल जैसी ये हमारा सोलर सिस्टम का एक इमेजिनरी मैप मैंने आपको दे दिया, जो आप थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे। 1 किलोमीटर और इसमें सिर्फ 8 बॉल्स। हम जब कायनात को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, उस दफन है मेगस जेके बनाव स्कूल इस्लामाबाद में सास के 3 एकड़ जमीन और 24 कनाल जमीन टाउन में तब मैं अगर 24 कनाल कहीं बनाना इज इट पॉसिबल? लुकन में मकान बनाने खातिर जमीन पूरा जो कायनात हमें लग रहा है भरा पड़ा है, सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा है, लेकिन पूरा खाली है। कितना खाली है कि हमारी जो सोलर सिस्टम है इसमें 1 किलोमीटर डायमीटर की एक स्पेस में हमारे पास 1 फुट डायमीटर की एक बाग है जो सबसे बड़ी है, और ऐसे ही 8 प्लैनेट्स या 9 प्लैनेट्स है जो इसके गिर्द घूमते हैं। दिस आवर सोलर सिस्टम। मुझे एक तस्वीर लेना था आपको, जो आपको दिख रहा है भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा नहीं है, खाली है। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, अगर ऐसे ही 100 स्टेडियम दूर जाएंगे, कितने 100 ऐसे खाली जाएगी, तो फिर हमें और एक सितार सिस्टम मिलेगा। इसके बाद 100 जाएंगे और एक मिलेगा, इसके बाद 100 जाएंगे और एक मिलेगा। तो ऐसे ही when we will go approximately 1 million systems that will make our galaxy Milky Way। मिल्की वे क्या है? बहुत बड़ी है ना, कितनी बड़ी है, लेकिन खाली खाली, इसमें कुछ नहीं, बस 10-10 बाले हैं और वो भी इतनी इतनी दूरी पर, बाकी खाली। अंडरस्टैंड? आपने एटम के बारे में पढ़ा है ना? गुड। यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया था, ये बिल्कुल खाली है। जो खाली जगह है, वैक्यूम है, उसको हम आमतौर पर बोलते हैं स्पेस। कैपेसिटी स्पेस हम बोलते हैं। तो इस स्पेस में कहीं कहीं क्या क्या है? मैटर, थोड़ा थोड़ा मैटर है किसी किसी जगह, जो व्हाट इज विजिबल टू अस। अब मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। एटम के बारे में आपने पढ़ लिया। क्या है एटम? Sir, atom is the smallest particle of the matter which पहले takes some place scientists in the- believed that sir which takes place in the chemical reaction. good. Some mostly the earlier scientists believed, जैसे हमारे पास पानी है ना, आप पानी को कहीं डिस्टिली, यहाँ से एक पानी और यहाँ से दूसरा पानी नहीं समझते। आप पानी को समझते हैं एक कंटिन्यूटी है, एक साइड से दूसरे साइड। जब आप वाटर की बात करते हैं, when you are going in a lake or you are going in a river, तो आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या देखते हैं? एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 10 वाटर है, 100 वाटर है, 100 वाटर है, मिलियन वाटर है, क्या समझे? लगता है ये कोई कंटिन्यूटी है। इस कंटिन्यूटी को हम बोलते हैं एनालॉगस, है ना? लेकिन अगर आप किसी रेतीले मैदान में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, यू आर गोइंग टू अ डेजर्ट, तो आप एक साइड से दूसरे साइड तक क्या गिनेंगे? रेत के पार्टिकल, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5। मे बी आपको पार्टिकल गिनने में मुश्किल होगा, बट इट इज पॉसिबल। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, वेयर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल। डिजिटल वर्ड इज नाउ वेरी कॉमन, है ना? है कॉमन या नहीं? आप में से कौन कौन घर में कंप्यूटर पर बैठा है, कंप्यूटर पर थोड़ा सा काम किया है? गुड, कोई कोई तो है। अच्छा, टीवी भी आजकल आप देखेंगे, टीवी जो होता है, अगर टीवी हमारा चल रहा है और हमारे पास यूपीएस नहीं है, कोई वो ट्रांसफार्मर इन्वर्टर नहीं है, तो क्या होता है? जल्दी ऑफ ऑन होता है, ऑफ ऑन होता है, ऑफ ऑन होता है। क्यों ऑफ ऑन होता है? जो पुरानी किस्म के हमारे पास टीवी थे, जिस टीवी से जो नॉन डिजिटल था, जो एनालॉगस टीवी था, तब उस गसन पावर कम, ब्राइटनेस कम हुआ करती थी, लेकिन ऑफ नहीं होता था। आजकल जो फौरन ऑफ होता है,
ऑफ होता है, जो आपका यूपीएस होता है तब से आवाज खटखट 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 क्यों होती है वो आवाज? भाई वो फ्लक्चुएशन, पावर फ्लक्चुएशन को डिजिटली लेता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो पावर ऑफ होता है तो उसको महसूस करता हो गया ऑन, उसका रिजल्ट दिखाता है। इट इज डिजिटल। एनालॉग्स में ऐसा नहीं। आज हमारे एक्सरे होते हैं डिजिटल एक्सरे, आज आपके डिवाइसेस होते हैं डिजिटल डिवाइसेस। सो आई वाज गिविंग सम आइडिया अबाउट एनालॉगस एंड डिजिटल। थोड़ा सा मैंने दे दिया कि कंटिन्यूटी को हम बोलते हैं, जो बाद में वो एनालॉगस। और लेकिन जहाँ हम कोई होल्डर्स होते हैं जो अलग-अलग के वो डिजिटल। पुराने ज़माने में कुछ लोग पहले समझते थे that the whole matter is analogous continuity, but later on, no, I will take 2 periods, square about period D. तो बिगनिंग में लोगों का ख्याल था कि एनालॉगस और ये सब एनालॉगस है, लेकिन बाद में देखा गया कि डिजिटल, बाद में देखा गया ये डिजिटल। And the first man who gave some clear idea about it is digital, who was he? He was John Dalton. John Dalton, इसने एटॉमिक थ्योरी दी। इससे पहले भी अरिस्टोटल ने भी बताया था एटॉम, एटॉम का मतलब है काटना। What is this time, sir? You are taking science or engineering subject? Science. Because then we have to change whole timetable. No, you change this subject, you will take at then. Madam, it was yesterday. Or the input problem. Okay. Now I was talking that tom means to cut, atom means which cannot be cut. Yes? तो हमारे पास जो सर्जरीज होती है ना, हम बोलते हैं तो इसको टोमिटी होता है, टोमिस्टी होता है, तो इसका मतलब है कोलेस्टॉमी होता है जो गॉल ब्लेडर को काटा जाए। तो टॉम मीन्स टू कट एंड atom is itself which cannot be cut further. So when we are talking about the atom, John Dalton gave the idea that matter is made of atoms. What is atom? He thought some pieces which cannot be further broken to. यानी हमारे पास एक चार्ट है जिसे मैं लिखता हूँ, चार्ट को 2 टुकड़े कर सकते हैं, 2 टुकड़ों को 4 टुकड़े कर सकते हैं, 4 टुकड़ों को 8 टुकड़े कर सकते हैं, फिर उसको मैं तोड़ूंगा। आई विल रीच अ लेवल जहाँ से मैं फर्दर टुकड़ों को तोड़ नहीं सकूंगा। तो डाल्टन का आइडिया यही था, सोचता है कि ये एटम जो है ये मजीद काट नहीं हो सकता। Then there came some other scientists, and one of the important was Rutherford. Rutherford की क्या किया जरा मुझे बताओ? उसने कुछ रेज से बॉम्बार्डमेंट की and he discovered something. उसने एक मॉडल दे दिया एटम का, that in the middle there is a nucleus. This nucleus was later on seen that it is not a single thing, it is made of protons and neutrons. They are approximately of the same size, same mass approximately, but they differ in charge. Proton has positive charge, neutron has neutral charge, and around them there are vast spaces. Approximately 80% of the spaces which is vacuum. कुछ नहीं है, very space, थोड़ी सी जगह है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। Assignment is you would find from your Google what is the size of nucleus, what is the size of hydrogen atom. Hydrogen atom. You will see that there is a large vacuum, emptiness, खाली जगह है। कितनी खाली जगह है? Approximately 70 to 80%. And around here, there are some electrons. What is an electron?
Negatively charged subatomic particle. Negatively charged subatomic particle. You must stop one by one. Okay, she thought that it is a particle. Many people thought it was particle. Can you tell me what is particle? What is particle? So particle is simply the smaller piece of the larger substance. It is part. Art. Art means if there is small part, that is article. If there is small part, it is particle. Small part is particle. So she defined as electron as an what? Particle. Particle means it has one orbital, it has another orbital. Later on, and giving a concept, you try to understand it very. Later on, it was seen that electron is not a particle at all. It's not a particle at all. Then what it is? Simple, I am not in a position to tell you what it is, but I will try. So that you will imagine. I will not tell this is, but you will imagine. How many of you have made Harvard papers? It's of no use to come now. Okay, come, let's sit down. Yes. How many of you have made rasgulla at home? At least you know what is rasgulla or how it is made. इसके लिए एक शीरा बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है शीरा? पानी में खांड मिलाया जाता है. कितना खांड? हद से ज्यादा. हद से ज्यादा. यानी 1 कप पानी में 3 कप खांड. That's called शीरा. उसको गर्म में दी जाती है. लेकिन अगर ना बनाना आए, अगर किसी को बनाना ना आए, तो उसमें खांड के थोड़े हायर डेंसिटीज रह जाते हैं. हायर डेंसिटीज, ज्यादा डेंसिटी. आप मुझे खांड पहले हैकान रोजी के में काम आप. एक खांड किसी तरह का शुगर होता है. Good. Please now understand it. Try to understand it. आप फिरनी बनाते हैं. फिरनी मस्ती वजन क्या कहते हैं? वेट पार्टिकल्स. है ना वजन? तो ये मतलब इस एटमस अंदर छू एनर्जी हुंद क्लाउड. आत्मस छू एनी एनर्जी हुंद बनियोमुत. अत्याशमान ये रोजान छू फिरनी मस्ती आत्मस अत्याशमान दान Dimension, I can't particular word. Okay. You see, remember here, pole you shall put there. You see, pole you are put there. You pole to get us, yet is one electron. यानी यही एनर्जी है. इसकी यहाँ डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, एनर्जी थोड़ी कम है. वही क्या चीज़ है? यदि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर दे जाएगा, संक्षेप का नंबर पकड़ने के, इसका पार्टिकल पकड़ने के, इसका पार्ट पकड़ने के. Density of energy युग्नत खुरान युग्नत गसन काम. किस पर से गसन? कितने कुछ? अगर वो जहाज पाएगी, नेबर के जो गसन एयरलॉक, डायरेक्ट जो गसन टॉसर. ये एनर्जी चाहिए वन जहाज बैठन, ये चाहिए वन सानन डायरेक्ट का पढ़ने वाले. अगर तेज गाड़ी ये वन हॉपर, ये शीशे तस नासान. Hence, how should pattern wind is pattern? Which pattern wave? You wave energy. Once yet electron yet nucleus sustaining energy with a cloud arc. Must energy in kya? Fail in the sense that you digitally alive, analog see. You only density current change. Are you getting me a bit? थोड़ा सा कुछ समझ आता है? It's very tough. So we say really कोई यहाँ इसकी एनर्जी कोई शेल वगैरह नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक एनर्जी का क्लाउड जैसा है कुछ, एक एनर्जी का क्लाउड जैसा है. और उसकी डेंसिटी जो चेंज होती रहती है, that we say electron is moving. वो पार्टिकल कोई नहीं घूम रहा है. अब आप थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे. बिजली घर से आती है ना हमारे घर तक. तो मैं क्या चाहता है? क्या वहां से इलेक्ट्रॉन हमारे घर में आता है? क्यों नहीं आता है?
फिर क्या आता है? क्या होता है? अरे इस लैंप से लाइट आएगी, जब मैंने स्विच ऑफ किया लाइट बंद हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले थे ना, जो फोटॉन्स इसमें, वो कहाँ गए? कहाँ गए? Have you ever thought? हमने स्विच ऑन किया, वहां तक तो आ गई ना एनर्जी, फिर इसकी फ्लो से रिलेटेड है, हैं? फ्लो कैसे करेगी? कौन? तो लाइट एनर्जी में करना। मुझे खुद पता नहीं है लाइट कैसे फ्लो करती है। लेट मी थिंक अबाउट इट। आपको लाइट की पढ़नी है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उसी चैप्टर पर, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हम बतानी है, इसलिए मैंने बताया। ओके, लेट मी टॉक अबाउट दिस कि ये नहीं है कि कोई चीज़, कोई इलेक्ट्रॉन आता है, जब वो आएगा तो तार में से चलता है और फिर हमारे पास आता है, ऐसी कोई बात नहीं। या ऐसे ही आती है एनर्जी, जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ इस चीज़ के साथ टकराती है, वहाँ एयरलॉक होते हैं, यहाँ से आते हैं, बीच में ये चलते हैं, कैसे चलते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह हमें दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है। तो आई वाज टॉकिंग कि हम जब इस अपने इर्द गिर्द को देखते हैं, व्हेन वी सी अराउंड अस, तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आते हैं वैक्यूम्स, स्पेसेस, और क्या नजर आता है? फोर्सेस नजर आते हैं, फोर्सेस नजर आते हैं, और क्या नजर आता है? मैस। स्पेस में मैस है, स्पेस में मैस है। पहले लोगों का ख्याल था मैस के साथ एसोसिएट फोर्स है, लेकिन अब देखा गया कि ये फोर्स जो है मैस के बगैर भी हो सकता है, मैस के बगैर भी हो सकता है। So when I'm talking what I am, आप मेरी तरफ देखते हैं ना, तो आप मुझे कोई सॉलिड चीज देखते हैं, नहीं, मैं कोई सॉलिड चीज नहीं हूँ। आप मेरी तरफ देखो, क्या लगता है आपको? अगर आप ये पेन उठाएंगे तो मेरे यहाँ से चाहिए पीछे से निकल सकता है, गुजार सकते हैं मेरे थ्रू, लेकिन मेरी बॉडी में काफी ज्यादा वैक्यूम है, काफी ज्यादा स्पेस है, काफी ज्यादा वैक्यूम है। कितना वैक्यूम है? अप्रोक्सीमेटली जो आप मुझे देखते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 70% स्पेस जो है वो खाली है, 70% स्पेस जो है वो खाली है। क्योंकि आप भी बताते ना एटम की बात, मैं यही एटम से बना हूँ, हर एटम में कितनी जगह तकरीबन खाली है? 70%। तो मेरे पूरे वजूद में चूंकि पूरे एटम से बना हूँ, तो 70% मेरा वजूद जो वो खाली है। वो कहाँ है फिर? मुझे दिखता क्यों नहीं है? What is the problem? आप ट्रेन में बैठे हैं ना, या गाड़ी में, किसी अड्डे में बस है, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी जो हमारे साइड में थी वो निकल गई, वो थोड़ी थोड़ी हरकत करती है, मुझे लगता है हमारी गाड़ी निकल गई। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, दूसरी गाड़ी यहाँ से आ गई, मुझे दिमाग में नहीं था कौन गाड़ी का, मैं ऐसे जब गाड़ी यहाँ से चल गई, मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी निकल गई, लेकिन हमारी गाड़ी निकली नहीं। मुझे इल्यूजन पैदा होता है। क्यों इल्यूजन पैदा होता है? क्योंकि मेरा जो रेफरेंशियल फ्रेम है, जिस गाड़ी में हूँ, ये मेरा फ्रेम है, इससे बाहर जो फ्रेम है वो मूव करता है, मुझे लगता है कि इसके मुकाबले में मैं भी चल रहा हूँ। मैं जहाज में बैठा था, मैं किसी से बात में पढ़ने में लग गया, तो मैं भूल गया कि मैं जहाज में हूँ। मुझे आराम से बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। जब जहाज में बताया कि आप सीट बेल्ट लगा ना, वी आर गोइंग टू लैंड, तो आप गिरना नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अब मुझे होश आता है, नो आई एम नॉट स्टैटिक, आई एम मूविंग। वही कभी इंसान के जो हिस्स होते हैं, जो इसको हवास होते हैं, वो इसको कंपेयर करते हैं, वो समझ नहीं पाता है हकीकत क्या है। आप डनलोप देखते हैं, डनलोप इसमें वो कोर्स होता है, इसमें क्या होते हैं? सुराख होते हैं। अगर इसके ऊपर पॉइंट डालेंगे वो नीचे जाएगा ना, लेकिन जब आप देखते हैं, डू यू फील कि इसमें कोई सुराख है? आप ये कपड़ा देखते हैं, इसमें कोई सुराख नजर आते हैं, लेकिन है ना, इसमें सुराख तो है। मोर देन 50% इस गैजेट में सुराख होगी। अगर इसको श्रिंक करेंगे ज्यादा तो इसको काफी जगह निकल आएगी। ओके, टुडे आई टॉक टू यू समथिंग अबाउट mass, space and force. अब ये फोर्स कैसे है? ये फोर्स तो मैंने बताया दिखता नहीं है, लेकिन ये ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? मैंने कुछ मिसालें बताई, एयरलॉक, मैंने इसके हिलने की बताई।
कैसे चलता है जब जहाज से यहाँ तक आता सर है? आपने बताया कि फोर्स मास के साथ रिलेट होना ये जरूरी नहीं है, स्पेस के साथ भी रिलेट हो सकता है। आप इसकी एग्जांपल दीजिए। पहले तो आप बात है हमेशा प्लीज जब मैं पढ़ाऊंगा एक राइट योर क्वेश्चंस डियर इमीडिएटली बुक लिख के रखो, क्योंकि मुझे जो इस वक्त अपना टारगेट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आया हूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैं नहीं आया हूँ कहानी बताने के लिए। लेटर आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और एंड पर आप देखें कहीं कहीं क्योंकि जो सवाल आपने करना है वो सवाल मैं यहाँ से ही आपको बताऊंगा इसका जवाब, वो मुझे पहले ही प्लान में है। ओके, जब मैं बोलता हूँ फोर्स जो आती है, जब एयरलॉक का फोर्स आता है, जरा मुझे बताओ कहाँ कैसे आता है हमारे पास? जहां से फोर्स निकल गया है ना, अब मेरे तक कैसे पहुंच गया? इस खिड़की तक, इस खिड़की को कैसे वो हिलाता है? ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? थ्रू सम मीडियम। कौन सा मीडियम? एयर। आपको लगता है सच में एयर ही है? एयर ही है, तो फिर एयर भी हिलना चाहिए ना? एयर भी हिलना चाहिए ना? keeps moving. हैं? Air keeps moving, I guess. हाँ, एयर भी तो फिर चलना चाहिए ना? तो जैसे मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी चलती है, मैं भी चलता हूँ। तो अगर वहां से कोई फोर्स आ गया एयर में, तो एयर भी चलना चाहिए। चलता है एयर? हाँ? नहीं चलता। आपने पत्थर उठा के कभी पानी में फेंका, उसमें रिपल्स आते हैं। रिपल्स बड़े हो के कहाँ तक पहुंच जाते हैं? बैक तक। जिस पानी में आप पत्थर फेंकते हैं उससे गोल गोल रिपल्स आते हैं। पहले एक गोल आ गया, वो बढ़ता हुआ जाता है किनारे की तरफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर ऐसे ही चलते हैं। फिर आप देखते हैं पूरा पूल जो है वो रिपल्स से भरा हुआ है। रिपल्स चलते हैं ना? असल में मैंने ऐसे पत्थर मारा, पत्थर नहीं मारा मैंने, ये पत्थर एक एनर्जी कैरी करता है। जब वो नीचे मारा, उसने किसको दे दी एनर्जी? पानी को। पानी ने किसको दे दी? दूसरे पानी के पार्टिकल्स को। उन्होंने तीसरे पानी के पार्टिकल्स को, उन्होंने चौथे पानी के पार्टिकल्स को। लिहाजा जो फोर्स मैंने बीच में मारा वो ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स द बैंक, वो बैंक की तरफ ट्रैवल कर रहा है। लिहाजा रिपल्स भी चल रहे हैं ना? चलते हैं। कहां से कहां तक चलते हैं रिपल्स? Of the source फ्रॉम द सोर्स जहां इसको एनर्जी दे दी टू द बैंक। अब आप घर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, रास्ते में एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहीं आप कागज के टुकड़े काटेंगे तो इन रिपल्स पर छोड़ेंगे, तो फिर कागज के टुकड़ों को भी कहां से कहां तक चलना है? तो व्हाट इज द बैंक? मैं गारंटी दूंगा वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, क्योंकि पानी चलता ही नहीं, पानी तो चलता ही नहीं। ये रिपल्स आर क्रिएटेड, रिपल्स मूव, लेकिन जो ये रिपल्स कैसे मूव करते हैं? यहाँ का पानी का पार्टिकल वो ऊपर उठता है, यहाँ का पार्टिकल नीचे जाता है, यहाँ ऊपर उठता है, यहाँ नीचे जाता है, ऐसे इन ए सक्सेसिव वे। सक्सेसिव, यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ नीचे, अब इसके बाद यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, फिर इसके बाद यहाँ जो नीचे था वो ऊपर, सक्सेसिव। अब क्या चल रहा है इसमें? एक वेव चल रही है, कोई बोलता था ट्रांसवर्स। पार्टिकल चलते हैं, पार्टिकल चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नॉट टुवर्ड्स द बैंक, फिर क्या? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो गोया पानी के पार्टिकल मूव करते हैं अप एंड डाउन, बट दे डोंट ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द बैंक। वेव इज मूविंग फ्रॉम source to the bank. The wave is really the force. Wave is really the energy. The energy is moving from source to the bank. अब particles कहाँ से move करते हैं? ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जिस मटेरियल में से वेव चलती है वो मटेरियल अपनी जगह से सिर्फ वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, चलता नहीं है, इट डजंट ट्रैवल। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। जो ये ऊपर गया ऐसे, इसने क्या बनाया?
टोपी जैसी बनाई ना, टोपी जैसी बनाई। जो कॉक होता है, कॉक कॉकरोच, जो हिल का एक टॉप होता है वो ऐसे होता है। ऐसी शक्ल को हम कश्मीरी में आमतौर पर बोलते हैं ताज या टियम, तो लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट। और जो नीचे ये कण की शक्ल बनती जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। आपने ये वर्ड घर पे कभी यूज किया है? आपकी माँ ने यूज किया है? दादा ने यूज किया है? नहीं। आप ये राइट, आप घर में ये डेली यूज करते हैं, मगर कुछ थोड़ा टफ। आर जो इतना प्रोनाउंस नहीं होता है इंग्लिश में, TROUGH जब बोलते हैं ना, आर जो है कम, ART आर्ट नहीं होता है, आर्ट CRT काट। तो TROUGH को कुछ टफ पढ़ते हैं, मगर इस गैर जनान हमेशा कुछ दफन है साब टफ, आब टफ, ऐसे स्टाफ उसमें छिल भी पा रहा हूँ। ये वही टफ है, इट्स नॉट समथिंग बिग। ओके, जरा देखिए यहाँ, ये क्रस्ट है, ये टॉप है। तो यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये पैटर्न रिपीट होता है, फिर ये ट्रफ कंप्लीट होगा, फिर ये रिपीट हो जाएगा। आप ये समझ गए या नहीं? अच्छी तरह। सो दिस विल बी कॉल्ड, दिस इज पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ वेव। वेव को पहचानेंगे ना, कैसे पहचानेंगे? Yes. You what is a dog? Sir, what is a dog? कितना बड़ा होगा? सही बताइए, कितना? Pekingese dog ऐसे गोद में उठाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर बड़ा सा कोट होगा, कोट के जेब में होगा। शोर बहुत ज्यादा है लेकिन खूबसूरत है, छोटा पैकिंग देखे ना। इसके बाद टिबेटियन डॉग होता है, इससे थोड़ा बड़ा, इससे ज्यादा खून वाला, सिर्फ आसन शैम्पू बोलते हैं। इससे बड़ा लेवर्ड डॉग होता है, इनसे वाइट बॉडी पैटर्न के ब्लैक फेस। तम कुछ बोर्ड पहन खून आसन अफगान हाउंड, तम कुछ बोर्ड शासन जर्मन शेफर्ड, तम कुछ बोर्ड शासन एल्सेशियन, तम कुछ बोर्ड शासन बुलडॉग। बुलडॉग is approximately as big as a cow. वो अपनी दांतों में बुद्धा गाय को दबा के उठा के बाहर फेंकता है। गाय को काऊ को उठा के बाहर फेंकता। प्लीज लिसन मी, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। कैट कितनी बड़ी होती है? एक छोटी सी कैट होती है घर में और एक बड़ी कैट है टाइगर। अरे चीजें जब आप नाम देते हैं, ये चीज है, आपको डिफाइन करना है कोई चीज क्या है। मैंने बताया कैट, तो आप बोलते हैं कितनी सी होती है, कहाँ कैट्स की बहुत सारी किस्में हैं। अब आप कैट को डिफाइन करते हैं साइज से, कलर से, कुछ चीजों से। यस, वेव्स भी होती है, इनको भी डिफाइन करना पड़ता है। किस चीज को डिफाइन करेंगे? हाँ, टोटल लेंथ जो इस पार्टिकल में वाइब्रेट करके ट्रांस की वापस आ गया, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस बिटवीन टू एम्पलीट्यूड्स इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड कितना होगा, वेवलेंथ कितनी होगी, और जब ये ट्रैवल करते हैं सोर्स से बैंक की तरफ, कितना टाइम, अब आप रिपल को देखेंगे खुशहाली से, स्टार्ट हो गया 9:01 पर। अब ये बैक पर कब पहुंचा, कितना टाइम लग गया, और इसकी स्पीड क्या रही, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव। दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं कि ये एक वेव जो मैंने बताई, एक वेव चली गई, दूसरी वेव चली गई, तीसरी वेव चली गई। एक सेकंड में कितनी वेव्स चलती हैं? मैं फ्रीक्वेंसी को एफ लिखूंगा। आई एम सॉरी, ये गलती मैंने की, लेकिन मैंने जानबूझकर गलती की। फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ लिखा। ये तीन चीजें आपको, चार चीजें पता होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड,
तो ये होती है, जैसे हम गाय पर ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं? Cow is an animal, it has 4 legs, it has this thing, it has this thing. जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं इसका वजन इतना है, ये कर सकती है। जब आपको वेव पर ऐसे लिखना होगा, वेव को आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको क्या देखना है कि वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। समझ गए ना आप? ये वेव को चलने के लिए अभी मैंने बताया क्या इसको, ये वेव 2 किस्म की होती है जो उसने सवाल किया था। एक वेव होती है जो मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव जो होती है उसको कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए। अरे पार्टिकल में से वो चलेगी, पार्टिकल नहीं चलेगा, पार्टिकल नहीं चलेगा, वेव पार्टिकल में से चलेगी, ये मैकेनिकल वेव। उसी में से ट्रांसवर्स एक वेव है जिसका पार्टिकल अप एंड डाउन नहीं, वेव की डायरेक्शन के साथ राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है? जो लेंथ के साथ चलती है, लेंथ के साथ पैरेलल चलती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल मैकेनिकल वेव की साउंड वेव कैसे चलेगी? वेव होगी जो पार्टिकल्स की मोशन होगी, वो होगी परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ वेव। अच्छा जरा एक सेकंड देखो। नाउ आई एम टॉकिंग, देयर इज सम एयर कॉलम और सम एयर वॉल्यूम, यहाँ से साउंड वेव है, तो कैसे चलेगी? वो साउंड वेव इनको पुश करके इनकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, फिर वापस आएगी, वापस ये इलास्टिक होती है, फिर वापस आएगी, ये डेंस आएगी। तो पुश यहाँ होगा, अब यहाँ होगी ज्यादा डेंसिटी, फिर ये डेंसिटी वापस आएगी, एनर्जी आगे चलेगी, यहाँ फिर डेंसिटी क्रिएट होगी, ये फिर वापस आएगी, एनर्जी आगे चलेगी। तो आप जरा देखिए आप क्या होता है, कंप्रेशंस होते हैं। कंप्रेशन को कश्मीरी में क्या बोलते हैं? स्याल। एरियरिफिकेशन होती है, कंप्रेशन होता है, एरियरिफिकेशन होती है, वहां क्रेस्ट और ट्रफ है, यहाँ कंप्रेशन, वेलोसिटी भी ऐसे ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही रहेगी, वेव लेंथ होगी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक, तो ये दूसरी किस्म की वेव होगी। अब जो लाइट है, लाइट भी पढ़ा ना आपने, वेव है, वो कैसे चलती है? कौन से पार्टिकल? सर पार्टिकल्स, सर असली में ये फील्ड वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये आपसे परपेंडिकुलर होते हैं। आप मुझे बता, इसमें कौन से पार्टिकल्स चलते हैं? पार्टिकल्स कौन से वाइब्रेट होते हैं? या ट्रांसवर्स वेव है तो जो पार्टिकल मोशन है वो अप एंड डाउन होनी चाहिए, अगर ये लॉन्जिट्यूडनल है तो रेयरिफिकेशन और कंप्रेशन होना चाहिए। तो ये कैसे चलती है? फोटॉन्स। तो फिर रात को नहीं चलेंगे, अंधेरे में नहीं चलेंगे। अच्छा, ये दूसरी किस्म की वेव। इसने एक बात की, से भी वर्ड यूज किया, फील्ड वेक्टर। और व्हाट इज फील्ड वेक्टर? क्यों नहीं कि इवन भाई आप जरा ये चीज पर लिखा हुई, हाँ जरा ये सुनिए, आप कल से एक्यूरेट टाइप पर आना। हम फील्ड की बात करें, पहले मैं आपको फील्ड कोशिश करता हूँ सभी फील्ड समझे क्या है। मैग्नेट है ना आपको, आपके पास मैग्नेट होता है, क्या करते हैं मैग्नेट से? मैग्नेट असल ये मैग्नेट आयरन्स नजदीक सह आयरन्स लामान कत पे अट्रैक्ट कर, अगर खुद में मैग्नेट कर अट्रैक्ट जहाँ तक इसकी फील्ड, इसका कोई डेफिनेट फील्ड नहीं होता है असल में। मैग्नेट यहाँ से भी इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कहाँ फील करता हूँ वो फोर्स। इस कमरे में जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ BBC से खबरें चल रही है, लेकिन हम नहीं सुनते हैं।
यहाँ से वो मिलिट्री वाले जो है अपनी वायरलेस पर बातें करते हैं उस मिलिट्री वाले के साथ, या हमारे मकान से होती जाती है, हम नहीं सुनते हैं। यहाँ बहुत सारे फ़ोन हैं, मेरे फ़ोन से उस फ़ोन से उस फ़ोन से, यहाँ कोई आदमी उस आदमी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा है, वो चल रही है, मैं नहीं सुन पा रहा। दूरदर्शन से कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है, अगर मुझे यहाँ होगा टीवी में सुनूंगा, अगर नहीं होगा टीवी तो वो चल रही है लेकिन मैं नहीं सुन पाता हूँ। चलती रहती है, चलती रहती है। कितनी ज्यादा चलती रहती है? बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। लेकिन हमारी सेंसिटिव कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिस वेव को आइडेंटिफाई करता है। हमारे कान भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी आंखें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी कई चीज़ों को क्या फील करते हैं, किसी चीज़ को नहीं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करता हूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड को कहीं हम फील करते हैं, कहीं फील नहीं करते हैं, लेकिन फील्ड तो है, फील्ड तो है। तो क्या फील्ड है ये? मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन बहुत सारे बच्चों को समझ आ रही है। आगे आगे ना, और एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। जैसे हमने इस वेव को देखा था, यहाँ कंपोनेंट था क्या क्या, एक एम्पलीट्यूड यहाँ और ये डायरेक्शन, ऐसे इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इंटरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये चलती है। ये इसमें फोर्स होता है, इसके साथ फोर्स होता है, वो मैं कल इंशाल्लाह बात करूंगा, वो या बाद में अगर मुमकिन हो गया। तो इसमें भी एक फोर्स होता है, वो फोर्स जो है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद मैटर, वो मैटर के साथ एसोसिएट नहीं, वो फोर्स विदाउट मैटर चलता है। मैकेनिकल फोर्स जो वेलोसिटी की वजह से होगा, मोमेंटम जो होता है, दैट इज ओनली एसोसिएटेड विद मैटर। हैव यू गॉट इट? तो चलिए, आज मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया वेव्स के बारे में, मैटर के बारे में, और किसके बारे में दे दिया? स्पेस के बारे में। अब जो चीज आपका सब्जेक्ट जो है आज जिसको ऊपर आपको पढ़ना है वो लाइट है। वेव्स जो होती, मैंने अभी आपको बताया, हम वेव्स में रहते हैं, वेव्स में रहते हैं। जरा मुझे बताओ, सबसे बड़ी वेव कौन है? यस सर, सबसे बड़ी वेव किस वेवलेंथ की कंपैरिजन में? वेव्स की भी हम बात कर रहे थे ना, मतलब कौन सी हिसाब से? गुड, ठहराओ आप। ये जैसे मैंने भी बताया, सबसे बड़ी गाय कौन है? आप मुझे पूछा कौन सी गाय, कौन सी गाय, तो आपको बताना है गाय कितनी बड़ी होती है, वेव कितनी बड़ी होती है। चलो, कुछ वेव्स होती है जिनको हम रेडियो वेव बोलते हैं। कितनी बड़ी होती है रेडियो वेव? इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती कितनी सर? some 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स। इन कोई रेडियो वेव हो सकती है जिसका क्रेस्ट 500 किलोमीटर्स, कोई हो सकती है जिसको 600 किलोमीटर, कोई हो सकती है जिसको 7000 किलोमीटर्स। मैं यहाँ बैठा हूँ, BBC से डायरेक्टली एक वेव आती है, वो दिल्ली में लैंड करती है और दिल्ली से यहाँ तक दूसरा, कदम राउंड है दिस रेडियो वेव। अब रेडियो वेव सबको एक जैसी वेवलेंथ नहीं है, जिस पर मैं हूँ एग्जाम्पल दिस अमि मुख्तलिफ साइज, यथे पे वारिया साइज, ये किलोमीटर्स में, तो समझना ऐसे किलोमीटर्स। नेक्स्ट वेव कौन है? माइक्रो। कितनी बड़ी होती है? I think it is also in kilometers. In meters approximately. Yes, sir. 100 meters, meters. Yes. इसके बाद इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड जो सबसे बड़ी होती है वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर होती है, 30 सेंटीमीटर जो आपकी 15 इतनी बड़ी होती है। Yes. इसके बाद कौन होती है? सर लाइट है।
हमारी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लाइट वेव जो हम विजिबल जो हमें नजर आती है 4,000 यस 4,000 से 8,000 एंगस्ट्रॉम्स की वेवलेंथ होती है लाइट। एंगस्ट्रॉम्स में मीटर्स में बात करते हैं, सो वी लेट अस टॉक अबाउट कंप्यूटर्स। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर से छोटी, आपका जो स्केल है 1 मिलीमीटर, इससे छोटी। और कितनी छोटी? अगर 1 मिलीमीटर के 1000 पार्ट्स किए जाए, नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, तो ये 800 to 400 नैनोमीटर्स के बीच में, हाँ? ये दूसरी वेव्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स कौन है? सर आई थिंक अल्ट्रावायलेट। yes you are correct, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट वेव्स जो है वो नैनोमीटर्स में भी होती है। इससे छोटी वेव्स कौन होती है? एक्सरेज, वो पेट्रोमीटर्स में है। इससे छोटी कौन होती है? गामा रेज। तो छोटी कंपेयर इसका वेवलेंथ वेवलेंथ, तो ये गामा रेज है। तो ये इनकी व्हाट क्या है? ये वेवलेंथ। इस वेवलेंथ से अब आपको समझना है व्हाट आर वेव्स, हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड। और इसमें आपको पढ़ना है वो पोर्शन जिसको हम बोलते हैं लाइट, विजिबल वेवलेंथ जो है विजिबल, यानी आपको इस चैप्टर में रेडियो वेव्स नहीं पढ़नी है, माइक्रोवेव्स नहीं पढ़नी है, इंफ्रारेड रेज नहीं पढ़नी है। आपको इसमें गामा रेज नहीं पढ़नी है, एक्स रेज नहीं पढ़नी है, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है? लेकिन लाइट को समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आपको दिमाग में जरूरी होना चाहिए कि ये क्या है। अब यहाँ मैं एक बात बताऊंगा, ये बाकी क्लास में सोच ज़्यादा खतरनाक समझना। इस बुढ़ा से बोल नफर इस 4 क्विंटल वाजना से बोल हेकन करित इस कम बहुत है तरह चीज छना ये इस वेवलेंथ ज्यादा है, तमसे फ्रीक्वेंसी आसन कम। ये क्या है? वेवलेंथ आसन ज्यादा, फ्रीक्वेंसी से आसन कम। ये फ्रीक्वेंसी है कम, तमसे वेवलेंथ आसन ज्यादा। वो उल्टे छना वन से मिलते जिससे गामा रेंज को आप क्या फ्रीक्वेंसी सारे खुद ज्यादा I'm खुद कम है एक्स, I'm खुद कम है अल्ट्रावायलेट, I'm खुद कम है लाइट। उनसे एक्सरे का चलाना सर ये टेस्ट की मेडिकल इसने एक्सरे लागे का चलाना यम चीज इस पठन गोली पकन छ जिस्मोइस यम चीज इस पठ पकन जिस्मोइस यम छ अर्जिन पर रिफ्लेक्ट गसित वापस यमन माजस पर रिफ्लेक्ट गसान यम छ अपार ये पोर्शन होता दे कैन बी इंजरियस टू हेल्थ। ऐसा हम बोलते हैं एक्सरे बोलिए रेस्टिंग के साथ सुन हम सुन बड़ क्यों पात्राउन एक्स्ट्रा बीमार से छ ताकि सिक्रीन स्थाई हो। जो गामा रेज है ये किस लिए यूज होती है? अगर किसी को कैंसर ट्यूमर होता है, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में उसको क्या रेडियोथेरेपी सुनिवन तमिस गामा रेज गन तमिस एक्यूरेट टारगेट कर फायर क्या कर ट्यूमर खा गामा रेज एक्स रेज इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज तो बूझ क्या स्किन कैंसर फ्रीक्वेंसी वारिया नॉर्मल लाइट छानस प्रॉब्लम कर पत इंफ्रारेड रेज तम ऐसे हीट दिवान पत माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवन गई तम हीट दिवान पत रेडियो वेव अम क्या कर कम्युनिकेशन आर यू गेटिंग मी? अच्छा, जिस दुनिया में हम रहते हैं न सिर्फ ये विजुअल दुनिया जो हमें नजर आता है, इसके अलावा काफी कुछ इनविजिबल दुनिया है जो हमें नजर नहीं आता। इसके अलावा काफी दुनिया है जो हमारे विजिबल सेंसेस में नहीं, ऑडिबल लिमिट में नहीं, विजिबल लिमिट में नहीं आते। लेकिन फिजिक्स क्या है? बस इस दुनिया को पूरी तरह समझना, इसको खोल खोल के देखना, विजुअलाइज करना,
वह गैस अगर तुम वह कम वेव क्या गो तुम गो वन अगर तुम क्रेस्ट एंड ट्रफ बस पे कर खुदकश तुम कम वेव वन तुम दिमाग मज कोई कुम ये पे टावर वावर क्या तुम टावर ये तुम कम रेडियो वेव तुम गो बसान टावर कत दिल्ली मज ब्या जम्मू मज ब्या अगर तुम कह वन गमा रेट तुम क्या गो बसान वकट मगर सुप्रीम रिश बड़ा तेज टिशू हो मज अमे सिट मज पकान सह जाय हेकान लगित Are you getting me? You must be in a position to visualize what waves are. This particular जानवर मुख्य दुनिया वनकस दिमाग मज बड़ लकट तेज पकान वार वार पकान क्या पकान तुम वन ये क्लास मज नबर तुम इथे पे दिमाग मज वेवन दुनिया बड़ लकट तेज पकान वार वार पकान अड़ ज्यादा ताकत अड़ कम कैन यू विजुअलाइज इट? Okay, I hope inshallah we will continue in the next class. Thank you.